Sister Basanti and Sister Sylvie as they come along with the band to take their respective seats for this Christmas program. A very hearty welcome to all our guests. All of you clap for our principal, vice principal, Sister Sylvie, Sister Basanti as they take their seats for this Christmas program. I hand over the mic to my anchors for this program, Lavanya and Chitralekha from class 8. Knowledge, hope and positivity. So, we gather here today. Let us begin this auspicious occasion by involving the divine and displaying darkness with the light of a lamp. It is a tradition that signifies the removal of ignorance and welcoming of wisdom and enlightenment. To be the beginning of our program, I would like to invite our principal, Father Alexander Montero, Vice Principal, Sister Lucia, and Ms. Sonia Stephen, Ms. Anima Kazoo, and Head Girl Ritika Chaudhary, to come forward and light the ceremony lamp. So, the lamp is being lit. Let us take a moment to reflect on the significance of light in our lives. Just as a single lamp can light many others without diminishing its own glow, let this act inspire us to share knowledge, spread togetherness, and foster a sense of togetherness. And dance is its rhythm in motion. Together they form a powerful medium to connect with the divine and express gratitude, devotion and love. To invoke the blessings of the Almighty and set a divine tone for today's event, we are delighted to present a soulful prayer dance. This performance is a humble offering of devotion, showcasing grace, spirituality and harmony.
External bond between humanity and divinity and the celebration of universal peace and unity. Thank you to all the students for this breathtaking and spiritually uplifting performance. Christmas is the season of joy, love and giving, a time to celebrate the birth of Jesus Christ, whose life is the greatest story of hope and salvation. To remind us of the life meaning of Christmas, we are excited to present a beautiful play that captures the essence of the joyous season. तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। हाँ जी, इतने बड़े शहर में हम पहली बार आए हैं। आपका दोस्त स्टेशन पे क्यों नहीं आया? मुझे क्या पता, वो बताया था कि आ जाएगा। कुछ समय और देखते हैं। लेकिन आपने बताया कि वो आपका बचपन का दोस्त है, शहर में बड़ा बिजनेस कर रहा है। हाँ, मैंने बताया था। अब उसके लिए क्या करें? देखिए, आप बिना मतलब क्यों मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? बिना मतलब मैं गुस्सा कर रहा हूँ? तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, मुझे पता है। हमारा पूरा पैसा और कपड़ा चोरी हो गया और पता नहीं शहर में कहाँ जाना है। मैंने पहले ही मना किया था कि शहर नहीं जाना है, गांव में ही कुछ काम हाँ कर। जी, मैंने गलती कर दिया, तुम्हारी बात नहीं माना। अब कुछ समय तुम शांत रहो। लो, अब ये भी रोने लगा। पता नहीं इसको कैसे चुप कराऊंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसा भी नहीं है। क्या हुआ? आप दोनों का साफ हो गया। अरे तुम जाओ पगली, पहले से ही हमारा दिमाग खराब है। किसने बताया कि आपका दिमाग खराब है? ये कौन है? आप इसको जानते हैं? हाँ, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई किए, तुम्हें नहीं पता है? सच में? तुम तो उससे भी बड़ी पागल निकली। मेरा बैग भी इसी स्टेशन में चोरी हुई थी और आज तक मुझे नहीं मिला। क्या हुआ बाबू को?
क्यों रो रहा है? अरे आज के दिन ही सब मुसीबतें मेरे साथ देने के लिए निकली थी। हाँ जी, आप किसी से मुंह खोलकर पूछिए, तभी कोई मदद करेगा। इस नए शहर में मैं किससे जाकर पूछूं? मुझसे पूछिए। अरे तुम पहले यहाँ से निकलो, नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ? ये मेरा स्टेशन है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ से जाओ। कम से कम वो चाय की दुकान में जाकर थोड़ा दूध ले आइए। हाँ, चाय के दुकान वाला मेरे बाप का इकलौता बेटा का भाई है ना, जरूर तुम्हें दे देगा। हे भगवान, मुझे कब तक इस पागल को झेलना है? हेलो, तुम मुझे कुछ भी कहो लेकिन पागल मत कहो, समझे? हाँ मैं समझ गया, तुम पहले यहाँ से निकलो। मैं जाता हूँ, तुम्हें तंग करने के लिए काला कोट वाला आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं। टिकट दिखाओ। साहब, हम लोगों का बैग चोरी हो गया है, उसी में टिकट भी था। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे हाथ में जो पकड़े हो वो क्या है? जो बैग मैं पकड़ी थी वो चोरी हो गया है। कहानी मत बनाओ, जल्दी 1200 निकालो। 1200 क्या साहब, हमारे पास 12 रुपए भी नहीं है, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया है। तो दोनों एक काम करो, मेरे साथ थाने में आना, वहाँ अपनी बाकी कहानी बता देना। चलो। साहब, हम लोग पहली बार शहर में आए हैं और हम किसी को भी नहीं जानते, इसीलिए बिना टिकट यहाँ तक आ गए हो? साहब, हम लोग सच में टिकट लिए थे और हमारा बैग चोरी हो गया है। मैं रोज ऐसे बहुत लोगों से ऐसी ही कहानी सुनता हूँ। चलो मेरे साथ थाने, चलो। साहब, हमारे पास बच्चे को दूध खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। काला कोट वाले साहब ठीक हैं? आपसे एक बात पूछूं? सर्दी में तो ठीक है, कोट पहनकर घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में कैसे? कान के नीचे एक दूंगा तो तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। निकल यहाँ से। यही है दुनिया, जब उत्तर देने नहीं आता है तुरंत मारने पीटने का धमकी देने लगती है। साहब, ये सही में पागल है या पागल जैसे नाटक कर रही है? क्यों? वो सही में पागल है तो तुम उसे इलाज करवाने ले जाओगे? आज तक तुमने मुझे इलाज के लिए लेकर गया था, बड़ा पूछने आया है। बस वही काम मेरे लिए बाकी रह गया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं जाता हूँ। तुम बताओ क्या करने का इरादा है? पैसा दोगे या थाने चलोगे? आप क्यों हमारी समस्या नहीं समझ रहे हैं? नमस्ते साहब। नमस्ते। आज क्यों इतना जल्दी आ गए हो? ऐसा कुछ नहीं है साहब। क्या हुआ इनको? वही बिना टिकट? हाँ वही है, और बड़ा कहानी बना रहा है कि उसका बैग चोरी हो गया है। साहब, मैं बना नहीं रहा हूँ। तुम चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। साहब, मुझे नहीं लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? साहब, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी नजर में नजर मिलाकर बातें नहीं करता है। बड़ा आया नजर देखकर चरित्र समझाने वाला। सर, ये बताइए इनको जुर्माना कितना देना है? क्यों, तुम दोगे? क्यों साहब, मैं दूंगा तो आप नहीं लेंगे? जुर्माना वो दे या तुम दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब जुर्माने से है। तो बताइए तो सही, कितना है? 1200। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं और हमारा बैग चोरी हो गया है। यहाँ क्यों आए हैं? नौकरी ढूंढने आए हैं। यहाँ किसी को जानते हो? इनके एक दोस्त ने हमें बुलाया था, लेकिन आज उसका अता पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी क्या करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चे का रोना कैसे बंद करूं। लो, इसे अपने बच्चे को पिला देना। दूध तुम्हें कहाँ से मिला? वो सब मत पूछो, बस इसे बच्चे को पिला दो। पता नहीं ये पागल दूध कहाँ से लेकर आई होगी। इधर से कोई औरत पागल जैसी गई है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो चोर है। मेरे दुकान से दूध का पैकेट उठाया और बिना पैसा दिए भाग गई। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति इस तरफ नहीं आया है, लेकिन वो दूध का पैसा कितना है
मैं देता हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस वो औरत मिल जाए। छोड़िए उसको, ये लीजिए अपना पैसा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये 10-20 रुपए के लिए उसके पीछे भाग कर आया हूँ? फिर क्यों आए हो? जब तुम्हारे दुकान से कोई लेकर भागेगा तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ जी, यही है आपका दूध का पैकेट? हाँ हाँ, यही है। तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने उसको ला कर दिया। अच्छा, तुम यही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे दुकान में आकर मेरे सामने ही चोरी करोगी? क्यों, तुम बड़ा बाहुबली हो कि तुम्हारे सामने कोई चोरी नहीं कर सकता? चोर कहीं की, तुम्हें शर्म नहीं है? ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। आपको पता है ना, ये एक पागल है और पिछले 10 साल से इसी स्टेशन पे घूम रही है। ऐसे लोग को पागल खाना क्यों नहीं भेजते? आप इस बात को समझ लीजिएगा, ऐसे कुछ लोग आज भी समाज में हैं, इसलिए मानवता अब भी जिंदा है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब मन करता है तो हंसना और चिल्लाना, इससे मानवता समाज में जिंदा रहती है। मैं जाऊँ? मुझे बहुत काम करना है। हाँ जी, समाज के सुधारक तुम जाओ, और भी दुकानों से आपको चोरी करना है ना? आपको पता है उस पागल ने दूध चोरी क्यों किया था? क्यों? इनके बच्ची को पिलाने के लिए। क्यों, इनके बच्ची को वो पागल दूध पिलाएगी? क्योंकि इनका पूरा पैसा और कपड़े सब चोरी हो गया है। तो क्या हुआ? मेरे ख्याल से सही पागल तुम हो, वो नहीं है। हाँ जी, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करिए, आप बच्ची को यह दूध पिला दीजिएगा। अच्छा हुआ, कम से कम उसको अपने गलती का एहसास तो हुआ। मैं आपका नाम पूछना भूल गया। मेरा नाम जॉन है और मेरी पत्नी का नाम प्रीति और 9 महीने के बेटे का नाम साइमन है। अभी क्या करने का इरादा है? क्या करेंगे? अगला ट्रेन पकड़कर अपने गांव वापस जाएंगे। तो शहर में काम नहीं ढूंढना है? कहाँ रहेंगे और क्या काम करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों को समस्या नहीं है तो मैं एक बात बताऊं? बताइए। मेरा घर स्टेशन के पास ही है और आप अपने दोस्त के मिलने तक मेरे साथ रह सकते हैं। नहीं, आपने हमारे लिए जुर्माना भरा, उतना ही ज्यादा है। कुछ ज्यादा कम की बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए। पता नहीं, हम लोग पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया है, उसका फल है आप जैसे स्वर्गदूत हमें। सह मानव को जरूरत के समय पर मदद नहीं करेंगे तो उसको मानव का दर्जा देना भी गलत है। क्या यही आपका बैग है? जी हाँ, ये हमारा ही है। यह क्या हो रहा है? कुछ समय पहले तुम दूध चोरी करके ले आई थी और अभी तुम खुद चोर को पकड़ कर लाई हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये सब बाद में बता दूंगी, पहले इसको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा कर आती हूँ। दीदी दीदी, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। तुम कहाँ अब चोरी कर पाओगे, तुम तो जेल में चक्की पीसोगे। दीदी मुझे थाने नहीं ले जाना। ऐसे गरीबों का बैग लूटने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे माफ करना, मुझे जीने का और कोई रास्ता ही नहीं पता चला। तो चोरी करोगे? आप अभी तक बताई नहीं कि आप कौन हैं? मैं यहाँ की नई इंस्पेक्टर हूँ। आप पुलिस हैं? हाँ जी, हमें इस स्टेशन से रोज 2 या 3 चोरी का कंप्लेन आता है और मुझे पता था इस स्टेशन में 2 या 3 पागल भी हैं। वही तो, आपके जैसे एक पागल को इस स्टेशन में मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ। कुछ समय पहले आपके बेटे के लिए दूध का पैकेट चोरी करने वाली वही पागल है। अच्छा, इसका मतलब आप चोर को पकड़ने के लिए पागल के रूप में घूम रही थी। आप बुरा नहीं मानेंगे तो आपसे एक बात बताऊं? बताइए। आज हमारे प्रभु मसीह का जन्मदिन है और हमारे प्रभु हमें बताए हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए मैं चाहता हूँ इस लड़के को माफ करके छोड़ने के लिए। क्या आप इसे छोड़ देंगे? हाँ जी, मुझे भी लगता है कि इसे भी सुधरने के लिए एक मौका देना चाहिए। हाँ जी, ये लोग सही कह रहे हैं। माँ कसम, मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। ये लोग बोल रहे हैं और आज बड़ा दिन भी है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे नया जीवन दिया है। लेकिन कभी भी आप चोरी करने नहीं जाएंगे? मैं हमेशा यही सोचती थी कि क्या कोई अपने दुश्मन को प्यार कर सकता है, लेकिन आज मेरे पति ने ये कर दिखाया। मैं प्रभु यीशु का एक और स्वर्णिम नियम को बताना चाहता हूँ। वो है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो
तुम भी उसके प्रति वैसा ही किया करो। एकदम सही बात कही है प्रभु ने। हाँ जी, प्रभु ने कहा है और आपने कुछ समय पहले कर दिखाया। आप जैसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले व्यक्ति हमारे समाज को चाहिए। वहाँ देखिए, कुछ लोग नृत्य करने आ रहे हैं। चलिए हम उनके लिए जगह दें। वे लोग प्रभु मसीह के जन्मदिन की खुशी मनाने आ रहे हैं। हाँ, आइए हम भी उनके साथ मिलकर खुशी और आनंद मनाएं। तरस गई थी अखियां, सपना 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 हो गया सच अपना। राजा साडा साडे विच है आया, राजा साडा साडे विच है आया। ओ अखियां 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 तरस गया सी अखियां, सपना 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 हो गया सच अपना। सपने अखियों में इस दिवस के अपने, आएंगे राजा हमारे दूर करने दुख मेरे। कब से ये सपने अखियों में इस दिवस के अपने, आएंगे राजा हमारे दूर करने दुख मेरे। कैसी धूम आज मची है हो, कैसी धूम आज मची है, कोई भी न जानता। तुम ही हो राजा जीवन के, हो गया सच सपना। अखियां 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 तरस गई थी अखियां, सपना 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 हो गया सच अपना। सारे जहां को आज ये जीवन नया, बेथलेहम की पावन धरती बन गई दुल्हन यहाँ। मिल गया सारे जहां को आज ये जीवन नया, बेथलेहम की पावन धरती बन गई दुल्हन यहाँ। चरण में जन्म लिया है हो, चरण में जन्म लिया है, हमें बनाया अपना। तुम ही हो राजा जीवन के, हो गया सच सपना। अखियां 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 तरस गई थी अखियां, सपना 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 हो गया सच अपना। राजा साडा साडे विच है आया, राजा साडा साडे विच है आया। हो अखियां 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 तरस गया सी अखियां, सपना 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 हो गया सच अपना। Oh, Merry Christmas everyone. The season of joy, love and laughter is here. And guess who is coming to town? Yes, it's none other than the jolliest them of all, Santa Claus. Santa is not about just gifts and goodies. He brings him with the spirit of happiness, hope and togetherness. And here he is to spread some cheer in the most entertaining way possible through dance. So everybody get ready to clap your hands, tap your feet and enjoy as Santa lights up the stage with us all seasons long. Ho ho ho, Merry Christmas.
मरियम देकर पैदा होया यीशु नाम रखाया मरियम देकर पैदा होया यीशु नाम रखाया यीशु दा हैप्पी बर्थडे अज चावा नाल मनाना यीशु दा हैप्पी बर्थडे अज चावा नाल मनाना Absolutely delightful. Let's give him a huge round of applause. May this festive spirit stay with us all season long. Ho ho ho, Merry Christmas. With this, we come to the end of today's program. Thank you all for being a part of this wonderful occasion. As we leave, let us carry forward the spirit of this event and continue to excel in what we do. Wishing you all a very happy Christmas. Now, may I request everyone to please rise and prepare for the national anthem. Let us show our respect and unity as we honor our nation. Let's give them a big round of applause for their outstanding performance. Christmas is a time of joy, love and togetherness. And what better way to celebrate this beautiful season than with the magic of dance. As the light of Christmas fill with joyful hearts, let's prepare to be swept away by a performance that celebrates the spirit of the season. So, get ready to witness an enchanting dance that captures the warmth of Christmas cheer, the sparkle of hope and the melody of celebration. So, without further ado, let's welcome our performers to the stage for this wishing dance. For your wonderful words. Christmas is a time when the world comes alive with joy, laughter and music. And what better way to celebrate the season of love, hope and through the timeless melodies of Christmas carols. We are thrilled to present delightful carols by our school choir. Each song reflects the joy of Christ's birth and message of peace and goodwill to all. Nacho
sacrifice and joy that this season begins. Let's give them a huge round of applause. Christmas is not just about lights, gifts or celebrations. It is a time to rejoice in the birth of Jesus Christ, a movement that brought love, hope and peace into the world. To remind us of the essence of Christmas and its timeless significance, we now have the Christmas message by Eva Singh and Ronald. Message that inspire us to embrace kindness, compassion and faith in our daily lives. Respected fathers, sisters, teachers, and all my dear friends. I'm Ronald. And I'm Hiva here to tell you about Christmas. Christmas is the great feast for the Christian. December 25 is the birthday of Jesus Christ. 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है। Jesus Christ became man so that human beings might share God's life. Jesus was born in Bethlehem, the city of David. यीशु मसीह मानव बने ताकि मनुष्य ईश्वर के जीवन में सहभागी बन सकें। यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ जो दाऊद का नगर है। He was born in poverty and suffered the cold winter, but his birth was announced to shepherds who came to see the wonder of the Savior. उनका जन्म गरीबी में हुआ और उन्हें ठंडी सर्दी का सामना किया, लेकिन उनके जन्म की घोषणा चरवाहों द्वारा हुई जो उद्धारकर्ता इस जन्म को देखने आए। The birth was revealed also to wise men who saw a special star in the sky. They followed it, which led them to the stable of Bethlehem. उनके जन्म का संदेश उन ज्ञानी पुरुषों को भी मिला जिन्होंने आकाश में एक तारे को देखा। उन्होंने उस तारे का अनुकरण किया जो उन्हें बैतलहम में ले गया। Christmas is the time for love, joy and togetherness. It reminds us to share happiness and be kind to everyone. क्रिसमस प्रेम, आनंद और एकता का समय है। ये हमें खुशी बांटने और सभी के प्रति दयालु होने की याद दिलाता है। It is the time of the year when friends and family come together and celebrate it with joy and spread happiness with each other. ये वह समय है जब दोस्त और परिवार एक साथ आते हैं, खुशी के साथ इसे मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ फैलाते हैं। The world was full of hate, anger and hypocrisy when Christ was born, but in spite of that, he was able to change people's hearts and fill them with joy. जब मसीह का जन्म हुआ था तब दुनिया नफरत, गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लोगों के दिलों को बदलने में और आनंद से भरने में सफलता पाई। The birth of Jesus Christ is the message of hope, love and salvation for all humanity. It reminds us that God's love is boundless, reaching every person regardless of their status or circumstances. यीशु मसीह का जन्म संपूर्ण मानवता के लिए आशा, प्रेम और मुक्ति का समय है। ये हमें पहुंचाता है चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। Born in a humble manger, Jesus arrived helping others. As we celebrate this sacred moment, let us inspire us to reflect on God और हंसी के साथ मनाएं। Once again, we wish you a Merry Christmas. Let's give our performers a huge round of applause. It is now my honor to invite our respected Principal, Reverend Father Alexander Montero. Respected sisters, members of the staff and my dear students, Christmas is the season of joy, love, care. As you have seen through the skit, the real meaning of Christmas. Christmas is the birth of Jesus. On 25th we celebrate. But the reality is that God became man. God became man and came into this world. And what did Jesus do? The one part of Jesus' act was acted on the stage, and you have seen the emotional skit acted through, where one couple was helped by a gentleman, by a police. No, this is the good acts, love, sacrifice, and forgiveness all the more. As you know the life of Jesus, who loved, who gave love, caring,
gave life, and at the same time he forgave his enemies. Through the skit we have learned that how we should be kind, gentle, loving, forgiving. This is the good qualities of Jesus. As we celebrate the birth of Jesus, the Christmas, you see sideways one Santa, no? And between you see the crib. Crib means where the place where Jesus was born. When Jesus, God became man and came into this world, he became a simple, normal human being. He didn't have even a place to take birth. Though he was the God creator, he didn't have place to take birth in this world. That symbolizes that God became very simple. He gave himself totally. He emptied himself totally and gave himself to the people. And the life of Jesus, we know how good things he has done and taught us to do. And as we celebrate Christmas, is a festival of joy. We have to give joy to others. We have to care others and give others. As God gave us, we too have to give others. What can we give in our life? We can give so many good things. Love, joy, peace, helping, sacrifice and forgiving. And this Santa, what is symbolizes Santa? Some say that Christmas is Santa full of. No, Santa is only a part of the celebration of Christmas. Santa who comes with gifts. Now you can see the bag with full of gifts. So Christmas is a season of giving gifts, gift sharing what we have. So we have to become a agent of giving joy, peace and love, not only taking. This is the real meaning of Christmas. As we celebrate this season of Christmas and shortly we are entering to the new year, let's thank God for all the blessings that God has given to us. Let us share these gifts with others in the season of Christmas and coming year 2025. So on this occasion, I wish you all the very best. Wish you all a very happy Christmas and a blessed New Year 2025. Thank you. God bless you.